Good morning, students. So, let us continue with our topic. In the last class, we were dealing with what pivoting is, what pivoting function is, and now, as we have seen what pivoting is, we will be moving towards the further topics that will be covered under pivoting. Pivoting generally means what? So, under pivoting, what we were doing, we were converting or swapping the rows to columns. है ना, we were swapping our rows and converting it into columns, or we are converting our columns to our rows and putting some values in it. So that was something that we were doing, and you can see what all codes we need to write. So we need to specify the name of the data frame dot pivot function, and this is pivot function means a bracket sign is there, so that is pivot function. And under the functions bracket we have to pass some parameters. Some of the parameters have to be passed. So what all parameters we are passing? We are passing index, columns and values. These are the three things that are generally passed inside the pivot function. What does index mean? So index means the rows that we will be putting it. The columns means the names of the columns, and what all the values? So what all values it will be containing. So these were the three things that are contained inside the pivot function. Sometimes it happens, as you can see in the example which is given over here. In this example you can clearly see that there are some of the values which are represented as nan, means those values are missing right now and you don't have any value for that. So in pivot function we are given one special attribute, we can say, and what that attribute can do, that attribute can change this nan to some other value. For that what you need to do, you need to use fill na function. Alright, what this fill na function will do, it will replace it with any value whichever you will give to it. 0 given, 1 given, 2 given, whatever value we will be giving it, it will change those nan values into the corresponding value that has been provided by you. So it is given in this column, in this example number 35, and we can see all the things are the same, but the only thing that has been changed is after the pivot functions bracket they have put dot operator and used the fill na function. And what this fill na function will fill, it will fill the value to be 0. So you can see the value has been filled with 0 and it has converted into 0. This is not nan, this is 0. गलती से वहाँ पर nan लिखा हुआ आ गया, but that is not nan, that is actually 0. So this was the last topic that was covered in our class. Pivoting इतना क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं. पाइवोटिंग के साथ साथ एक और कंसेप्ट है जो इन्होंने बताया है, जिसका नाम होता है पाइवोट टेबल फंक्शन. अभी जो हम देख रहे थे वो क्या था? वो अभी था सिंपली पाइवोट फंक्शन. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पाइवोट टेबल फंक्शन. अब पाइवोट फंक्शन तो देख लिया कि क्या करता है, कैसे करता है. अब यही सारी चीज़ें जो पाइवोट फंक्शन यूज़ करती हैं वही सारी चीज़ें ये पाइवोट टेबल फंक्शन भी यूज़ करती हैं. बट पाइवोट टेबल फंक्शन कहाँ डिफ़र करता है पाइवोट फंक्शन से, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा. We were going through one table, and let me go to that table and then explain you. Just a minute. Okay, so this was the table, as you can see on your screen right now. This is a table which is given to us. Alright, and what we were supposed to do, we were supposed to perform some pivoting operations on this. Here you can see there are some tutors: Tahira, Gurjot, Anusha, Jacob and Venkat. There are 5 tutors. They used to take different number of classes in a we can say at a particular time, and those classes were arranged for the students of various countries like USA, UK, Japan, USA and Brazil. सो यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर 5 ट्यूटर्स हैं जो कुछ नंबर ऑफ़ क्लासेस लेते हैं और कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में लेते हैं. ये उनका डेटा हमको दिया हुआ है. ऑलराइट, सो नाउ एज यू कैन सी वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक दैट वी वेर ऑन. हाँ,
अब इन्होंने क्या बोल दिया कि वो जो हमारा ट्यूटर्स का डेटा था, वो जो हमने अभी देखा ये वाला जो ऊपर भी लिखा हुआ था, ये सेम डेटा है। इन्होंने ऐसे बोल दिया कि ये एक कंपनी है जो ट्यूटर्स का डेटा स्टोर करती है, ठीक है। नाउ इफ़ इट स्टोर्स द डेटा ऑफ ट्यूटर्स, तो वो जो डेटा हमको बताया था वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर का डेटा था, ठीक है। मतलब वो एक 1/4 ऑफ एन ईयर का डेटा था। तो ऐसा इन लोगों के पास चारों क्वार्टर्स का डेटा है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, सिमिलरली दे विल बी हैविंग फॉर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर एज वेल। तो यहाँ पर इन लोगों के पास क्वार्टर वाइज चारों क्वार्टर का डेटा है, और जिसमें इन ट्यूटर्स की डिटेल्स होंगी। हर क्वार्टर में ये लोग अलग अलग नंबर ऑफ क्लासेस कंडक्ट करते होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। तो वो सारा डेटा इन लोगों के पास है। जैसे कि अगर हम सिर्फ ये वाले टेबल को देखें तो 1 2 3 4 4 सीरियल नंबर दे दिए, ट्यूटर के नाम वही लिख दिए, ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जेकब और वेंकट। नंबर ऑफ क्लासेस अरेंज करी, और कौन से क्वार्टर में करी, तो फर्स्ट क्वार्टर में। सिमिलरली सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने ये क्लासेस अरेंज करी और इन कंट्रीज़ के लिए अरेंज करी। सेम गोज़ फॉर द थर्ड ईयर एंड सेम गोज़ फॉर द फोर्थ ईयर। द टीचर्स आर द सेम, सीरियल नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, टीचर्स आर द सेम। 14 तक सीरियल नंबर था, तो 15 16 17 18 19। तो ये सारा का सारा ये 4 क्वार्टर्स का डेटा हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा डेटा है इन टीचर्स का साल भर का, है ना। टीचर्स कितने हैं, टीचर्स मात्र 5 है, और इन 5 टीचर्स का पूरे साल भर का ईयरली डेटा है, जो कि क्वार्टर वाइज इनके पास कन्वर्टेड है। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्वार्टर वाइज डेटा है इसका एक पहले तो पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब कि ये जो क्वार्टर में है Q1 Q2 Q3 Q4, ये जो हमारे पास क्वार्टर वाइज डेटा है, इसको हम एक कंबाइन करके पूरा एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है। अब कंबाइन करना है सारे के सारे डेटा को, तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको इसको क्रिएट करना है तो कॉलम्स के नाम पता होना चाहिए। तो कॉलम्स के नाम लिख लेंगे ट्यूटर, है ना। तो ये हमारा कैसे हम लिखेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर हम डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखो एक ट्यूटर का टेबल बनाना था, तो उन्होंने एक वैल्यू दे दी और करली ब्रैकेट ओपन किया, और एट लास्ट करली ब्रैकेट क्लोज किया। ये वाला करली ब्रैकेट ओपन हुआ है और ये एट लास्ट यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है। ये करली ब्रैकेट ओपन होकर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर इसको क्रिएट करने के लिए वही कॉलम का नाम इस टू, जो जो वैल्यूज़ देना है, तो कॉलम का नाम इस टू ये लिख दिया, ट्यूटर इस टू। मतलब कि कॉलम का नाम है ट्यूटर, और ट्यूटर के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, तो ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जेकब वेंकट। ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए हुई, ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जेकब वेंकट। सेकेंड क्वार्टर के लिए सेम गोज़ फॉर द थर्ड ईयर एंड फॉर द फोर्थ ईयर एज वेल, क्योंकि चारों क्वार्टर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स तो सेम थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा डेटा एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अब इन सब के लिए नंबर ऑफ़ क्लासेस, तो कॉलम का नाम हो गया क्लासेस इस टू, और कॉलम के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या डालनी है, तो वैल्यूज़ डालनी है 28 36 41 32 40। तो देखो यहाँ पर वही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 28 36 41 32 40। दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, दिस इज़ फॉर द थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर। तो यहाँ पर सारे क्वार्टर्स की वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दी, और शुरू की 5 वैल्यूज़ फर्स्ट क्वार्टर की होंगी, तो ये फर्स्ट क्वार्टर की, ये सेकंड क्वार्टर की, ये थर्ड क्वार्टर की, फोर्थ क्वार्टर की। तो एक क्वार्टर नाम का कॉलम भी बना दिया, और अल्टीमेटली लास्ट में वो कंट्रीज़ को भी एक के बाद एक उसी ऑर्डर में लिख दिया जिस ऑर्डर में हमारा डेटा था। सो दिस गोज़ कि यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। इन्होंने इसको डेटा फ्रेम को क्या नाम दिया है, तो इस डेटा फ्रेम को नाम दिया हुआ है गलत लिख दिया, DEF1। तो ये डेटा फ्रेम का नाम है DEF1, ठीक है, ये याद रखना। अब DEF1 डेटा फ्रेम में देखो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्यूटर, तो ट्यूटर की डिटेल्स है, क्वार्टर तो क्वार्टर की डिटेल्स है, कंट्री तो कंट्री की, और क्लासेस। सो इस तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल्स हमारे पास अब क्वार्टर वाइज नहीं होते हुए एक पूरे के डेटा फ्रेम में है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने डेटा को अरेंज करके रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इस पे पाइवट फंक्शन लगाएंगे। अब जब पाइवट फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी।
मतलब कि हमारा जो ये ट्यूटर नाम का कॉलम है ये अलग चेंज हो जाएगा, है ना। वो जो अभी रोज़ ये जो कॉलम्स में चल रहा है वो अब रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, जब हम इस पर्टिकुलर टेबल पर पाइवोट फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पाइवोट फंक्शन लगा दिया, अब इंडेक्स दे दिया मैंने ट्यूटर। अभी मेरे कॉलम का नाम था ट्यूटर, अब मैंने इंडेक्स दे दिया ट्यूटर। जैसे ही मैंने इंडेक्स ट्यूटर दिया तो मतलब ये नाम क्या आने चाहिए, सिर्फ ए ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, वेंकट, जेकब, ऐसे नाम आने चाहिए और उनने कितनी कितनी क्लासेस ली वो डिटेल्स आनी चाहिए। इस तरीके से हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं और कॉलम्स में कंट्री को डालते हैं, मतलब कि इंडेक्स वैल्यू तो हमने दे दी ट्यूटर, मतलब कि ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जेकब और वेंकट, ये तो हमारे रो में आ गए। अब इधर ऊपर क्या लिख दिया हमने, ऊपर लिख दिया यहाँ पर कंट्री, और इन्होंने किस कंट्री में पढ़ाया तो वो यूएसए, यूके, ऐसा डेटा यहाँ पर आते जाना चाहिए। बट जब हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया तो एक एरर आई, इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज कैनॉट रीशेप। ये एरर क्या आई है इसको देखो। अगर हम ताहिरा की बात करें तो देखो, जैसे कि हमने क्या कहना चाहिए कि हमारा इंडेक्स वैल्यू हमने ले लिया था ट्यूटर। तो हमारा इंडेक्स वैल्यू जब ट्यूटर है तो ताहिरा के लिए एक चीज़ यहाँ पर समझो, जो ताहिरा है वो अगर हम 2 क्वार्टर्स में देखें, यहाँ पर देखो, जैसे ताहिरा है तो ताहिरा ने यूएसए में कितनी क्लासेस ली, 28। और नेक्स्ट क्वार्टर में ताहिरा ने यूएसए में ही क्लासेस ली, कितनी ली, 36। थर्ड क्वार्टर में देखते हैं, ताहिरा ने क्लासेस ली ब्राज़ील में, ताहिरा ने क्लासेस ली जापान में। यहाँ तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अलग अलग कंट्रीज़ थी, पर यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में ताहिरा ने यूएसए में 28 क्लास ली, सेकंड क्वार्टर में ताहिरा ने यूएसए में 36 क्लास ली। अब क्या होगा, जब हम पाइवोटिंग करेंगे, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं। जैसे कि ताहिरा का ही केस ले लिया तो ताहिरा की यूएसए के लिए वैल्यू 28 भी आ रही है और 36 भी आ रही है, मतलब 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब जब 2 वैल्यूज़ आ रही है तो पाइवोट फंक्शन कैसे अप्लाई करें, है ना। यहाँ पर जब 2 वैल्यूज़ आ रही है तो पाइवोट फंक्शन हाउ इट विल अप्लाई दिस वैल्यू, वो क्या वैल्यू अप्लाई करे ये उसको समझ थोड़ी ना आएगा, क्योंकि देयर इज़ अ डुप्लीकेसी ऑफ वैल्यू ना। तो यहाँ पर पाइवोट फंक्शन वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो जब कभी कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाती हैं तो दिस लीड्स टू एरर इन पाइवोट फंक्शन। तो यहाँ पर पाइवोटिंग पॉसिबल नहीं होती है। अब यहाँ पर पाइवटिंग पॉसिबल नहीं होती है तो यहाँ पर क्या पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर पॉसिबल होता है पाइवोट टेबल फंक्शन। पाइवोट टेबल फंक्शन क्या कर देगा, जैसे आपकी वैल्यू 28 और 36 आ रही है, ठीक है, 28 भी आ रही है, 36 भी आ रही है, तो यहाँ पर आप पाइवोट फंक्शन, पाइवोट टेबल फंक्शन का यूज़ करके या तो इन दोनों वैल्यूज़ का सम निकलवा सकते हो, या तो इसका सम डिवाइडेड बाय 2 मतलब मीन निकलवा सकते हो, और भी जो भी हमने देखे थे वेरिएंस और ज़माने की चीज़ें, एसटीडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सब भी निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पाइवोट टेबल फंक्शन है वो हमको एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है, और वो पाइवोट टेबल के अंदर की जो एडिशनल फंक्शनैलिटी है वो ये है कि यहाँ पर इट डज़ नॉट रेस एरर्स फॉर मल्टीपल एंट्रीज इन अ रो और कॉलम कॉम्बिनेशन। सबसे पहला एडवांटेज कि जहाँ पर रिपीटिंग वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर पाइवोट फंक्शन तो एरर दे देगा क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ है। जैसे ही आपने पाइवोटिंग लगाई, आपको दिखा कि एरर आ रही है, तो आप क्या करना, सिंपली स्विच इट टू पाइवोट टेबल फंक्शन। आप लोग वहाँ पर पाइवोट फंक्शन ना यूज़ करके अब क्या यूज़ करने लगना, पाइवोट टेबल फंक्शन यूज़ करने लगना। पाइवोट टेबल फंक्शन का सेकंड एडवांटेज, इट एग्रीगेट्स द मल्टीपल एंट्रीज प्रेजेंट फॉर अ रो कॉलम कॉम्बिनेशन। यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एग्रीगेशन यू वांट, सम चाहिए कि मीन चाहिए। यहाँ पर ये उन वैल्यूज़ को एग्रीगेट कर देता है जहाँ पर रिपीटिंग वैल्यूज़ आती हैं। अब रिपीटिंग वैल्यूज़ आई तो जोड़ना है या मीन निकालना है, या वेरिएंस निकालना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है, ये हमको फॉर्मूले में लिख के बताना पड़ता है।
ये देखो, ये इसका रूल है लिखने का तरीका, हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे, इसको देखते हैं। डेटा फ्रेम का नाम डॉट पाइवोट टेबल फंक्शन, जैसे कि पाइवोट फंक्शन लिख रहे थे वैसे ही पाइवोट टेबल फंक्शन। जो हम लिख रहे थे वैल्यूज़, इंडेक्स और कॉलम्स, वो तो है ही है, जैसा पाइवोट में लिखते थे वैसा इसमें भी लिखते हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हो जाती है जो होता है AGG फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। मीन लगाना है, सम लगाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है, वेरिएंस लगाना है, क्या लगाना है वो आप यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन नाम के एक जो चौथा एट्रीब्यूट आप पास करोगे पाइवोट टेबल फंक्शन में, उसमें आप डिफ़ॉल्ट इसमें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग पूरा का पूरा पाइवोट फंक्शन जैसा बना दे और सिर्फ पाइवोट फंक्शन की जगह पाइवोट टेबल फंक्शन लिख दें, है ना, तो देखो क्या होता है। जैसे कि आपका DF1 नाम का डेटा फ्रेम था, उस पर आपने पाइवोट फंक्शन की जगह पाइवोट टेबल फंक्शन लगा दिया, इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज़ प्रोवाइड करिए। अभी आपने कोई AGG फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया है। अभी जब आपने कोई भी AGG फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया है तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जब आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आप लोगों को मीन प्रोड्यूस करके दे देता है। मतलब जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर देगा और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देगा। अगर अभी 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे कि इसने पाइवोट फंक्शन लगाया था तो एरर आई थी, बट अब इसने क्या लगा दिया, इसने लगा दिया पाइवोट टेबल फंक्शन। जैसे ही पाइवोट टेबल फंक्शन लगाया और जब इसको रन किया तो अब आप देख सकते हो वहाँ पर आपकी 2 वैल्यूज़ आ रही थी, 28 और 36। जब 28 और 36 को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि 6 12 13 14 कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 68 आ रही है। तो 68 यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो इसने यहाँ पर उसका मीन निकाल दिया। मतलब 28 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 68 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि नहीं 6 12 13 14 64, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 32। तो ये जो मीन वैल्यू आई वो मीन वैल्यू को उसने यहाँ पर इनपुट कर दिया। पाइवोट फंक्शन होता तो एरर आ जाती। पाइवोट फंक्शन रिपीटिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे वर्क नहीं कर पाता, तो उसको किससे रिप्लेस किया गया, उसको रिप्लेस करा गया पाइवोट टेबल फंक्शन से। और पाइवोट टेबल फंक्शन में बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस हम लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो अप्लाई होता है वो होता है मीन, और हम इसको चेंज कर कर सम या और कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडरिंग द ट्यूटरिंग कंपनी डेटा कंप्यूट टोटल क्लासेस पर ट्यूटर। अब देखो इसने क्या बोल दिया इस एग्जांपल में, आपको हर एक ट्यूटर की टोटल क्लासेस आपको काउंट करनी है। ट्यूटर की काउंट करनी है मतलब एक बात पक्की हो गई कि जो ट्यूटर है वो हमारा इंडेक्स है, एक बात तो पता चल गई। अब क्या बोला है, क्लासेस काउंट करनी है, तो हमारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, क्लासेस की जितनी भी उनकी वैल्यूज़ आएंगी तो क्लासेस हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक, अब क्लासेस हमारी वैल्यूज़ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ऊपर कॉलम के नाम में भी क्लासेस ही लिख देगा। तो ये देखो जैसे ही आपने ये ट्यूटर का कॉलम बनाया और क्लासेस का कॉलम बनाया और यहाँ पर जब एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल्स टू सम पास कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली टोटल निकाल दिया कि अनुषा ने कितनी क्लास पढ़ाई टोटल, गुरजोत ने कितनी पढ़ाई, जेकब ने कितनी पढ़ाई, ताहिरा ने कितनी पढ़ाई और वेंकट ने कितनी क्लासेस पढ़ाई पूरे साल में। वो पूरा का पूरा एग्रीगेट इसने निकाल कर यहाँ पर बता दिया। सारी क्लासेस को टोटल कर लिया, जोड़ दिया और यहाँ पर उसने लिख के दे दिया। तो ये यहाँ पर पाइवोट टेबल फंक्शन कर सकता है, पाइवोट फंक्शन नहीं कर सकता। वो तो एरर ही दे देगा क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो रिपीटिंग होंगी। कंसिडरिंग द ट्यूटोरिंग कंपनी डेटा, अगला एग्जांपल है कंप्यूट नंबर ऑफ कंट्रीज काउंट पर ट्यूटर। अब काउंट क्या है, तो काउंट भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन में वैल्यू आ जाएगी काउंट। क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कंट्रीज पर ट्यूटर, हर ट्यूटर ने कितनी कंट्रीज़ को पढ़ाया वो काउंट करना है। तो आपको ट्यूटर तो आपका पक्का है कि इंडेक्स में आ गया, और वैल्यूज़ में क्या आ जाएगा, तो कंट्री आ जाएगा। तो कंट्री, हर ट्यूटर 4 कंट्रीज़ को पढ़ा रहा है, 4 ही कंट्रीज़ है मतलब हर ट्यूटर चारों कंट्रीज़ में क्लासेस ले रहा है। अगला एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द ट्यूटरिंग कंपनी डेटा कंप्यूट टोटल क्लासेस बाय कंट्री। ठीक है, अभी क्या था, टोटल
नंबर ऑफ कंट्रीज बाय ट्यूटर, अब निकालना है टोटल क्लासेस बाय अ कंट्री, कि हर एक कंट्री की कितनी क्लासेस अटेंड हुई। तो टोटल क्लासेस बाय कंट्री जब आपको निकालना है, एक तो इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि टोटल क्लासेस बाय कंट्री, है ना, मतलब कि कंट्री के बेसिस पर निकालना है। तो कंट्री हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, और क्लासेस हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। और एग्रीगेट फंक्शन क्या निकालना है, टोटल क्लासेस निकालना है, मतलब सम। तो ये देखो, जैसे ही आपने ये फंक्शन लगाया तो कंट्री और क्लासेस आपके कॉलम्स बन गए, और यहाँ पर आप लोगों को ये वैल्यूज़ मिल गई, और इनमें कितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस हुई वो भी इसने यहाँ पर निकाल कर बता दिया। ब्राज़ील, जापान, यूके, यूएस, ब्राज़ील, जापान, यूके, यूएस, 4 ही कंट्रीज़ हैं क्या? हाँ, 4 ही कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, जापान, यूके, यूएस। यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी इन्होंने, एरर, ये कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। ब्राज़ील का काउंट एक ही बार आना था, और एक बार में ही ओवरऑल 180 या जितनी भी क्लासेस आ रही है वो एक बार में आ जानी थी। ये कुछ आउटपुट निकालने में गलती हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और काम उन्होंने करके बताया है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग दो चीज़ों को एज अ रो भी काउंट कर सकते हो, दो चीज़ों को एज अ इंडेक्स भी ले सकते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 39, कंसिडरिंग द ट्यूटोरिंग कंपनी डेटा कंप्यूट टोटल क्लासेस ऑन 2 फील्ड्स। अब आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कंप्यूट करना है। चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि क्लासेस नाम का जो कॉलम है वो हमारी वैल्यू रहेगी। टोटल क्लासेस ऑन 2 फील्ड्स, तो ये क्लियर हो गया कि क्लासेस जो है वो हमारा वैल्यूज़ रहेगा। अब कौन कौन सी 2 फील्ड्स है, तो ट्यूटर और कंट्री। तो ये जो ट्यूटर और कंट्री है ये क्या हो जाएगा, तो ट्यूटर और कंट्री हमारा रोज़ हो जाएंगी। चलो ठीक है, अब ट्यूटर और कंट्री हमारी रोज़ हो गई, तो इसको पास कहाँ करना पड़ेगा, इंडेक्स में। तो ये देखो, इंडेक्स में ट्यूटर और कंट्री पास कर दिया। वैल्यूज़ क्या है हमारी, तो क्लासेस है, और क्या करना है, टोटल क्लासेस निकालनी है, मतलब आपको फिर सम निकालना है। टोटल बोल दिया, सम निकालना है। तो देखो अब आउटपुट कैसा आया, ट्यूटर और कंट्री दोनों के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन्होंने इसको तो सॉर्ट कर लिया। अनुषा का नाम ए से चालू होता है, वेंकट का नाम वी से चालू होता है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में इसने जमा दिया। कंट्री भी जमा दी उसने, पर कंट्री कैसे जमाई, पहले तो अनुषा, अनुषा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बी, जे और यू। सिमिलरली गुरजोत के असेंडिंग ऑर्डर में जे, यूके और यूएस, और सिमिलरली बाकी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया है कि इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को अरेंज किया है। पहले ट्यूटर्स, तो ट्यूटर को असेंडिंग ऑर्डर में, फिर ट्यूटर के अंदर कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर अल्टीमेटली जो भी उनकी क्लासेस की वैल्यू अकॉर्डिंगली आ रही है वो वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली वहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 40 जो है हमारा वो देखते हैं। कंसिडरिंग द ट्यूटोरिंग कंपनी डेटा कंप्यूट एवरेज क्लासेस ऑन 2 फील्ड्स। अब वही 2 फील्ड्स पर आपको सिर्फ एवरेज क्लासेस निकालनी है। अब जहाँ पर आप एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल्स टू सम लिख रहे थे, वहाँ पर आप एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल्स टू मीन लिख दोगे। जब आप मीन लिख दोगे तो क्या होगा, जहाँ पर सिंगल वैल्यू है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ पर सिंगल वैल्यू वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पर जहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ थी उन मल्टीपल वैल्यूज़ को ये यहाँ पर काउंट करेगा। जैसे कि हमको पता है ताहिरा का मल्टीपल वैल्यू आ रहा था यूएसए में, है ना, तो ताहिरा का मल्टीपल वैल्यूज़ जो यूएसए में आ रहा था, तो देखो यहाँ पर उसने उसको ऐड किया है और उसका मीन निकाला है, मतलब डिवाइड बाय 2 किया है। तो 64 को 2 से डिवाइड किया, तब जाकर इधर 32 आंसर इनका आया है। और जिनकी सिंगल सिंगल थी वो तो सिंगल सिंगल ही रहेंगी, 36 38 जो सिंगल सिंगल है वो तो सिंगल ही आएंगी, क्योंकि सिंगल वैल्यू है, मतलब जैसे कि 38 वैल्यू है और 38 ही क्लासेस लिया और कोई वैल्यू नहीं है, तो वो 1 से डिवाइड होगा, और 1 से डिवाइड होगा 38/1, 38 ही आएगा। तो वहाँ पर मीन लिख लेगा तो 31 ही आना है, 38 ही आना है, ठीक है। एक और इतना क्लियर हो गया कि हमको भैया यहाँ पर जब कभी रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं तो रिपीटिंग वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास एक क्या कह सकते हैं कि अलग से पाइवोटिंग का ऑप्शन है जिसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं, और वो जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं पाइवोट टेबल फंक्शन। अब एक और काम जो हम कर सकते हैं, द अनदर थिंग दैट वी कैन डू इज़ वी कैन सॉर्ट द डेटा। हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग करना मतलब कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट।
whatever will be our requirement, we can arrange our data in either ascending or descending order. That is also possible. ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने अभी देखा कि ताहिरा और ये सबको अभी उसने अनुषा को सबसे ऊपर रख दिया था ना, असेंडिंग ऑर्डर में उसने जमा दिया था. सिमिलरली हम लोग भी सॉर्टिंग कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर. अब सॉर्टिंग जब हम करते हैं तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, डेटा फ्रेम का नाम डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन. ये फंक्शन का नाम ध्यान रखना, फंक्शन क्या होता है, सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन. अब सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन के पैरामीटर में क्या क्या वैल्यूज़ पास होती है, तो वैल्यू पास होती है बाय, मतलब आपके किस कॉलम या रो का नाम आपको यहाँ देना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है ना. जैसे मैंने दे दिया बाय इज इक्वल्स टू ट्यूटर, तो अब वो ट्यूटर के नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा, मतलब सबसे ऊपर अनुषा को रखेगा और उसके नीचे फिर जो भी अपने जेकब और वो सब है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और लास्ट में रखेगा वेंकट को. सिमिलरली एक्सेस असेंडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू अगर दे देते हैं हम तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाएगा. असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स दे देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएगा. इन प्लेस इज इक्वल्स टू फॉल्स. इन प्लेस का मतलब ये होता है कि हम अगर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे तो क्या होगा, वो डेटाबेस जो हमारा डेटा फ्रेम हमने बनाया ना, वो डेटा फ्रेम में ही वैल्यूज़ की लोकेशन हमेशा के लिए चेंज कर देगा. और अगर इन प्लेस इज इक्वल्स टू फॉल्स करते हैं तो वो सिर्फ आउटपुट जनरेट करने के लिए हमको उस टेबल को उस ऑर्डर में शो करेगा. बट अगर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो वो परमानेंट चेंजेस कर देगा, उनकी प्लेसेस चेंज कर देगा. और इन प्लेस मतलब कि वो वहाँ पर इन वैल्यूज़ को नाउ सॉर्टेड फॉर्म में ही हमेशा के लिए सेव कर देगा. तो वो होता है इन प्लेस. अगला दिया हुआ है काइंड, क्विक सॉर्ट और जो भी तरीके होते होंगे काइंड के. काइंड जनरली हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सॉर्टिंग ऑटोमेटिक हो रही है. और एन ए पोजिशन एक और यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं एन ए पोजिशन, मतलब जो आपकी नैन वैल्यूज़ होती है वो नैन वैल्यूज़ को क्या सबसे ऊपर रखना है कि सबसे नीचे रखना है. तो लास्ट और फर्स्ट दो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पास कर सकते हैं. इसको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिंपली इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी होगा. DF1 जो हमारा डेटा फ्रेम था ट्यूटर्स वाला, बहुत बड़ा डेटा फ्रेम जो हमने बनाया था, उस बहुत बड़े डेटा फ्रेम पर DF1 में हमने सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन लगाया और किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी, कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग. तो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जब सॉर्टिंग करी तो सबसे छोटी कंट्री हमारी कौन सी थी, बी से चालू होने वाली ब्राज़ील. तो ब्राज़ील का डेटा उसने जमा दिया, ब्राज़ील 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 ब्राज़ील, ठीक है, और ब्राज़ील. अगला जमा दिया उसने जापान, सेकंड कंट्री जापान आएगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो जापान, फिर यूके और यूएसए. तो इस ऑर्डर में उसने वैल्यूज़ को जमा दिया और इनको अरेंज करने के बाद जो भी डेटा जिस ऑर्डर में जमना था उसको वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेगा. ये क्या है, ये वाला कॉलम अजीब सा दिख रहा होगा, 4 8 10 13. तो ये कुछ नहीं है, वहाँ पर जो हमारे इंडेक्स थे ना 0 1 2 3 4 5, ये उन इंडेक्सेस की प्लेसेस चेंज हो गई ना यहाँ पर. तो वो अब क्या हुआ, ब्राज़ील वाला फोर्थ इंडेक्स जो था वो सबसे ऊपर आ गया. देखते हैं हम 4 वाला क्या है. 4 हमारा होना चाहिए 440 ब्राज़ील वेंकट, ये होना चाहिए. देखते हैं फोर्थ नंबर की वैल्यू क्या है. ये रहा टेबल. फोर्थ नंबर की वैल्यू है 40 ब्राज़ील 1 वेंकट, है ना. यहाँ भी हमारी वही वैल्यू थी, 40 ब्राज़ील 1 वेंकट. तो वो वैल्यू क्या हुई है, उसको उसने जब सॉर्टिंग करी तो फोर्थ इंडेक्स सबसे ऊपर आ गया और फर्स्ट इंडेक्स जो था वो यहाँ नीचे चला गया. और जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स था जैसे कि 18th इंडेक्स, वो सबसे वो यहाँ पर अरेंज हो चुका है. तो वो इंडेक्सिंग इधर उधर हो गई ना ऊपर नीचे, तो इसलिए उसने उसके नाम वहाँ पर लिख दिए. सिमिलरली यू कैन इवन सॉर्ट द सेम डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूटर्स. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉर्ट वैल्यूज़ के अंदर बाय इज इक्वल्स टू बाय और इज इक्वल्स यहाँ पर ट्यूटर. आप बाय ना लिख के सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो सॉर्ट वैल्यूज़ में ट्यूटर. तो ट्यूटर भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है. अब ट्यूटर्स के अकॉर्डिंग जमा लिया तो अनुषा का नाम ए से चालू होता है, तो सिंपली अनुषा 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 एक साथ, गुरज्योत एक साथ, जेकब एक साथ और ताहिरा एक साथ, और उसके नीचे वेंकट एक साथ. जगह नहीं है तो उन्होंने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया है,
पर ये ट्यूटर्स के अकॉर्डिंग जमा है, मतलब कि यहाँ पर ये इनके असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको इसने डेटा को जमा दिया है, और उसके अकॉर्डिंग जमाने पर ये इसके इंडेक्स की वैल्यूज़ इस तरह से मॉडिफाई हो गई। इवन वी कैन सॉर्ट द वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ टू पर्टिकुलर कॉलम्स, ठीक है, दो पर्टिकुलर कॉलम्स के ऑर्डर में भी हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। वैल्यूज पहले किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होंगी, तो पहले होंगी कंट्री वाइज सॉर्ट, और हर कंट्री में वैल्यू किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होंगी, तो हर कंट्री में वैल्यू होगी ट्यूटर के अकॉर्डिंग सॉर्ट, फिर कंट्री फिर ट्यूटर, तो इस तरीके से सॉर्ट होंगी। चलो देखते हैं, जब इनने सॉर्टिंग करी तो सबसे पहले छोटी कंट्री बी से चालू होने वाली ब्राज़ील, तो ब्राज़ील नाम सबसे ऊपर लिख दिया, और ब्राज़ील में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो जे से जेकब, और फिर ताहिरा, और फिर वेंकट, ठीक है, तो इस तरीके से जमा दिया उसने। फिर नेक्स्ट उसने लिया फिर ब्राज़ील, अब यहाँ पर ब्राज़ील लिया, और ब्राज़ील के बाद यहाँ पर अनुषा, अनुषा को ऊपर आना था कायदे से, ब्राज़ील, यहाँ पर इन्होंने ब्राज़ील कुछ गलत लिखा है, इसलिए वो कंट्री का नाम ऐसा लिख रहा है। यहाँ पर ऊपर जो ये ब्राज़ील वैल्यूज़ दी है ना, ये चार जगह पर, ये चार जगह पर उन्होंने ब्राज़ील के पहले स्पेस दे दिया है, यहाँ पर ब्राज़ील के पहले स्पेस नहीं दिया है, इसलिए उसने इसे एक ब्राज़ील को अलग कंसिडर किया है। नहीं तो ये जो ब्राज़ील वाली अनुषा वाली वैल्यू है, इसको सबसे ऊपर आना था, मतलब जेकब के भी ऊपर आना था, बट वो ब्राज़ील टेबल बनाते समय इन्होंने गलत लिख दिया, तो इसीलिए यहाँ पर उसने उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। जो अनुषा वाला ब्राज़ील है वो थोड़ा सा पहले आ रहा है, देखो बी कंट्री के ठीक नीचे लिखा है, और यहाँ पर देखो ब्राज़ील थोड़ा सा इंडेंटेड है, मतलब क्लियर है कि यहाँ पर ये वाला जो ब्राज़ील है इसमें स्पेस नहीं छोड़ा गया है, बाकी सब ब्राज़ील के पहले स्पेस छोड़ा गया है, इसीलिए ये अनुषा वाला उसने नीचे अरेंज करा हुआ है, ऊपर साथ में नहीं किया। फिर ब्राज़ील के बाद जे, तो जापान, और जापान के अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसने ट्यूटर वाइज सॉल्व कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर हम इसी कोड को, ये जो आपने ये कोड लिखा है, यही के यही कोड को इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या डिफरेंस है दोनों में, एक जैसा तो दिख रहा है, क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर एक बाय नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया है, जो हमने देखा था। आप बाय यूज़ नहीं भी कर रहे थे तो भी काम तो वही हो रहा था। अनदर थिंग, अगर आप असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, तो असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स करने पर क्या होगा, अब वो असेंडिंग में ना जमा होते हुए किस में जमा होगा, डिसेंडिंग में। तो यहाँ पर देखो ट्यूटर कॉमा कंट्री दिया है, तो पहले ट्यूटर वाइज अरेंज होगा, तो वेंकट सबसे बड़ा है तो वेंकट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि असेंडिंग में नहीं जमा रहे, डिसेंडिंग में जमा रहे हैं, और कंट्री उसके बाद जमा होगी तो यूएसए, फिर यूके, इस तरीके से डेटा अरेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये सॉर्टिंग भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल नंबर 41 देखते हैं। कंसिडर द प्रोडक्ट डेटा फ्रेम बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन, वो जो क्रॉप वाला हमारा डेटा फ्रेम था ना, वीट फ्रूट्स और वो सब जो था, उसकी बात कर रहा है ये। यहाँ पर देखो उस पर सॉर्टिंग लगाई है, क्या सॉर्ट लगाया, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्डर ऑफ वीट बाय देम, वीट के ऑर्डर में इनको सॉर्टिंग करनी है। अब वीट के ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो आपको तो सीधे सिंपली डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा और सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा बाय एट्रीब्यूट, और बाय एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास कर देंगे वीट, एज सिंपल एज दैट। जैसे वीट वैल्यू पास करेंगे तो वो वीट के अकॉर्डिंग टेबल जनरेट हो जाएगा। अब जब वीट के अकॉर्डिंग टेबल जनरेट हुआ है तो 0.5 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2737, उससे बड़ा 16440, उससे बड़ा 30056, और एट लास्ट नैन वैल्यूज़। हम इसको नैन को शुरू में भी रख सकते हैं, तो एन पोजीशन की वैल्यू अगर फर्स्ट दे देंगे तो ये नैन वाली वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी, अगर कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे ही अरेंज होती हैं। अगला एग्जांपल सेम, उसमें सेम के सेम डेटा फ्रेम में क्या उन्होंने लगाया, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द प्रोडक्ट इन ऑर्डर ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के ऑर्डर में अरेंज करना है, बट एक और ख़ास बात है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फ्रूट्स के फॉर्म में अरेंज करना है, तो बाय तो फ्रूट्स यहाँ पर आ गया। चलो इतना तो हमको क्लियर है कि सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन लगाने के बाद बाय इज इक्वल्स टू फ्रूट्स लिख देंगे। डिसेंडिंग में लगाना है तो कॉमा इज इक्वल्स टू फॉल्स। जैसे ही हम कॉमा इज इक्वल्स टू फॉल्स लगाएंगे यहाँ पर, अब वो इस टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा। डिसेंडिंग ऑर्डर किसके, फ्रूट्स का,
तो फ्रूट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और फिर छोटी 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 वैल्यू। तो आप देख सकते हो 44.1 सबसे छोटी वैल्यू है जो कि सबसे नीचे जमा हुई है। सिमिलरली एक और उन्होंने बोला इंडेक्स के बेसिस पे भी सॉर्टिंग की जा सकती है, तो वहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन। तो आप जैसे सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन लगाओगे तो वो इंडेक्स के ऑर्डर में भी सॉर्टिंग कर देगा, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग मतलब ये है, जैसे कि ये इंडेक्स है ना, तो अब आपने जैसे कि सॉर्ट इंडेक्स लगा दिया है ना, आपने यहाँ पर जैसे ये देखो आपने लगा दिया सॉर्ट इंडेक्स असेंडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल्स टू फॉल्स, या सिर्फ इतना लिख दिया असेंडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या होगा वो इंडेक्स के ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। मतलब क्या, आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर आ जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा केरला, फिर आ जाएगा पंजाब, फिर आ जाएगा त्रिपुरा और फिर आखिरी में आ जाएगा यूपी। तो इस ऑर्डर में ऑटोमेटिकली वो डेटा को अरेंज कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 43 देखते हैं, वही हमारा प्रोडेफ डेटा फ्रेम पर क्या करने का बोला है। तो राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ प्रोडेफ इन ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इंडेक्सेस के ऑर्डर में तो अरेंज करना है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब यूपी जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो देखो जैसे अरेंज किया, यूपी, त्रिपुरा, पंजाब, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ऑटोमेटिकली ये डेटा कांस्टेंट हो गया और इस डेटा के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स के लिए जो जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर टेबल डेटा फ्रेम। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और फंक्शन दिया हुआ है जैसे हमने पढ़ा था शुरू में कि तीन फंक्शंस हम देखने वाले हैं। तो पाइवोटिंग अब ख़त्म हुआ है और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन कुछ नहीं है, एग्रीगेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब ये काउंट, सम, मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्स, स्टैंडर्ड वेरिएशन और वेरिएशन, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हम कहीं ना कहीं हमने लगा कर डेटा फ्रेम्स पर देखे हैं। एक ही बस नहीं देखा है जो है मैड, MAD फंक्शन। MAD फंक्शन का फुल फॉर्म देख लो आप, MAD होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, तो ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है। तो ये क्या करती है, तो ये जो मैड फंक्शन है ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालता है किसी भी एक्सिस के लिए। क्या होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा वैल्यू एंड द मीन। हर एक डेटा वैल्यू और जो मीन वैल्यू वहाँ पर है उनके बीच का जो भी आपका वहाँ पर क्या कह सकते हो आप, एवरेज डिस्टेंस आ रहा है ना, जितना डिस्टेंस आ रहा है उसका एवरेज निकाल कर वो वहाँ पर वैल्यू पुट कर देगा। ये कोई फार्मूला हमको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली आपने जैसे ही प्रोडेफ पे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फंक्शन लगा दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा, कोई रो या कॉलम कुछ नहीं बताया, तो उसने ऑटोमेटिकली आपके जो आपकी ज़ीरो एक्सिस होती है, ज़ीरो एक्सिस के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज कर दिया, मतलब कि कॉलम्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पर एक्सिस ज़ीरो की जगह यहाँ पर ब्रैकेट में एक्सिस 1 लिख देते तो अब वो रोज़ के अकॉर्डिंग अरेंज होता, मतलब कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उनके अकॉर्डिंग उसने उसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी वैल्यूज़ जनरेट करनी थी उसने कंसंट्रेट करके यहाँ पर लिख दिया। हैंडलिंग मिसिंग डेटा इज़ अगेन अ कंसेप्ट विच इज़ गिवन ओवर टू अस। अब हैंडलिंग मिसिंग डेटा होता क्या है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देर आर वेरियस we can see at various different conditions we can find that there are some missing values which are given to us. अब क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज़ जहाँ पर है तो वो तो कंप्यूटेशन में तो काम नहीं आती। जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर तो काउंट होती नहीं है। पर एक एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई कॉलेज की रैंकिंग पता चल रही है उसके 10 साल के रिकॉर्ड से, इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 आउट ऑफ ग्रेडिंग दिए, कैंपस कितने आ रहे हैं उसको 10 आउट ऑफ समथिंग कुछ नंबर्स दिए, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ 10 आउट ऑफ नंबर्स दिए। तो ये कितने साल का डेटा कलेक्ट किया, 10 साल का, ठीक है। अब कोई ऐसा कॉलेज है जो 3 साल पहले ही खुला, अब जो कॉलेज 3 साल पहले ही खुला है तो उसके पिछले 10 साल के डेटा में क्या होगा, नीचे के 3 वैल्यूज़ तो चलो ठीक है, पर उसके ऊपर जो सन निकल चुके हैं वहाँ पर उसके पास क्या वैल्यू आने वाली है, तो वहाँ पर उसके पास एक नैन वैल्यू आने वाली है। अब वो नैन वैल्यू काउंट तो कर नहीं सकते क्योंकि वो कॉलेज था ही नहीं उस टाइम, उसको ज़ीरो भी नहीं दे सकते कि भैया उस टाइम पर इनकी ज़ीरो स्ट्रेंथ थी, बहुत ख़राब रिकॉर्ड था, ऐसा थोड़ी ना।
वो कॉलेज उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो वो वैल्यू तो वहाँ पर काउंट नहीं होगी ना। तो ऐसे समय पर हमको क्या करना होगा, उस मिसिंग वैल्यू को हम किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करने की। वाई हैंडल मिसिंग डेटा, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये एक डेटा साइंस का पार्ट है ना, लर्निंग का पार्ट है, मशीन लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है ये पाइथन पांडास। सो द सिंपल आंसर इज दैट द डेटा साइंस इज ऑल अबाउट इन्फेरिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स और प्रिडिक्शंस फ्रॉम द गिवन डेटा, and if the missing values are not handled properly then it may affect the overall result and researchers may end up drawing an inaccurate inference about the data। है ना, ये क्या है, ये एक साइंस का फील्ड है जो कि एक्यूरेट या प्रिडिक्शंस जनरेट करता है। अब जब मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगी तो उसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पर इनएक्यूरेसी आ सकती है। अब जब इनएक्यूरेसी आएगी तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो इफेक्ट होगा, और जब पूरा का पूरा रिजल्ट इफेक्ट होगा तो सीधी सी बात है कि एफिशिएंसी भी खराब होगी ना। जो एक्यूरेट डेटा ये लोग देने का दावा करते हैं वो एक्यूरेट डेटा ये लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मिसिंग डेटा को भी किस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कैसे मिसिंग डेटा को हैंडल करेंगे वो यहाँ पर बताया। तो मिसिंग डेटा को हैंडल करने के दो तरीके। पहला तो उसको पूरी तरह ड्रॉप कर दो, काउंटिंग में कंपटीशन में लाओ ही मत, या इम्प्यूटेशन कर दो। इम्प्यूटेशन कर दो मतलब उसको जो मिसिंग डेटा है उसको किसी एक वैल्यू से फिल कर दो, उसमें कोई वैल्यू डाल दो, तो उसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन। जैसे कि यहाँ पर एक इन्होंने टेबल दिया हुआ है। अब इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ये नैन वैल्यूज़ हैं, है ना। ये कुछ नैन वैल्यूज़ है जो यहाँ पर हमको दिख रही हैं। जब हमने इनको देखा तो ये नैन वैल्यूज़ जो थी, ये यहाँ पर जो दिख रही हैं ये नैन वैल्यूज़ थी। अब ये इन नैन वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, हटाना है या उनको कुछ और फिल करना है, इम्प्यूट करना है, इम्प्यूटेशन करना है। तो उसके पहले इन्होंने हमको दो फंक्शंस और समझा दिए। यहाँ पर देखते हैं वो दो फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन है इज नल फंक्शन। इज नल फंक्शन किसी भी डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज़ को फाइंड करने का काम करता है, उसका नाम ही है इज नल फंक्शन। तो नल फंक्शन इज नल क्या करेगा, ये फाइंड करेगा कि कहाँ कहाँ पर नल वैल्यूज़ हैं। तो जैसे ही आप इज नल फंक्शन लगाते हो किसी भी एक एग्जाम्पल डेटा फ्रेम पर, जैसे कि एक पेशेंट डीएफ नाम का डेटा फ्रेम है, उस पर इन्होंने इज नल फंक्शन लगाया, तो देखो आंसर कैसा आया, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। मतलब जहाँ जहाँ पर फॉल्स आया है मतलब वो नल वैल्यू नहीं है, जहाँ जहाँ पर ट्रू आया है मतलब वो नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये नल वैल्यूज़ है, ये पूरा का पूरा ही एक पूरा नल है। ठीक है, तो ये नल वैल्यूज़ को फाइंड करने के काम आता है। सिमिलरली अगर आपको ये तो नल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इज नल फंक्शन, अब नल वैल्यूज़ जो नहीं है वो फाइंड करना है तो लगा दो नॉट नल फंक्शन, उसका उल्टा। तो ये क्या बताएगा, जो वैल्यूज़ नॉट नल होंगी उनको ये ट्रू बताएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं और क्या बताया हुआ है। मिसिंग हैंडलिंग मिसिंग डेटा, और उसमें क्या तरीका पढ़ने वाला है, ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यू। हम कैसे मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हैं, तो ड्रॉप करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए फंक्शन क्या करता है, आपके उस टेबल में से जितनी भी नल वैल्यूज़ थी या नैन वैल्यूज़ थी उन नैन वैल्यूज़ को ड्रॉप कर देता है, और बचा हुआ टेबल आपको आपकी स्क्रीन पर जनरेट करके दे देता है। जितनी भी फॉल्स वाली वैल्यूज़ थी इसने फॉल्स वाली वैल्यूज़ हटा दी, 0 3 और 4 जनरेट किया। अब क्यों 0 3 और 4 जनरेट किया, ऊपर देखते हैं। ये रहा हमारा टेबल, इसमें इसने 0 3 और 4 जनरेट किया। क्यों किया ये, तो देखो यहाँ पर ट्रू 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 लिखा था मतलब ये नल वैल्यू थी, और यहाँ भी ट्रू ट्रू लिखा है, यहाँ भी नल वैल्यू थी। तो दोनों में कहीं ना कहीं नल वैल्यूज़ थी, तो उसने क्या किया, सिंपली ड्रॉप एन ए लगाने से क्या हो गया, उसने नल वैल्यूज़ को ड्रॉप कर दिया।
तो बचा क्या, तो 034 ही तो बचा, तो 034 का पूरा आउटपुट इसने यहाँ पर हमको दे दिया। एक और तरीका होता है, यहाँ पर देखो आपने देखा एक चीज़ कि यहाँ पर जब हम ड्रॉप कर रहे थे तो ये टेबल तो चलो कम्प्लीटली, ये वाली जो रो थी ये कम्प्लीटली ट्रू थी, मतलब कि इज नल ट्रू, मतलब कि पूरा का पूरा खाली था, ब्लैंक था, तो इसको तो कंसिडर नहीं करना है कंप्यूटेशन में, तो इसको हटा दिया। पर ये वाले को देखो, इसमें कुछ वैल्यूज़ फॉल्स है, मतलब ये नल नहीं है, और कुछ वैल्यूज़ ट्रू है, मतलब ये नल है। अब क्या होगा, कुछ नल है कुछ नल नहीं है, और आप चाहते हो कि ये कंसीडर हो जाए क्योंकि आधा तो नॉट नल है ना, और आप अगर इसको कंसीडर करना चाहते हो तो यहाँ पर अब आपके पास एक और नया फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप एन फंक्शन के अंदर हाउ इज इक्वल्स टू ऑल। अगर आप हाउ इज इक्वल्स टू ऑल पास कर देंगे तो जैसे ही आप हाउ इज इक्वल्स टू ऑल पास करते हैं तो वहाँ पर वो जितनी भी हमारी रोज़ हैं जिसमें एन ए है उनको हटा देगा, बचा हुआ सारा डेटा डिस्प्ले कर देगा। तो देखो यहाँ पर उसने सारा डेटा डिस्प्ले कर दिया नन वैल्यूज़ को हटा के, पर नन वैल्यूज़ को हटा के डिस्प्ले कर रहा था तो उसको ये फॉल्स आया, मतलब ये तो उसको डिस्प्ले करना पड़ा। अब जब इसको ये डिस्प्ले करना पड़ा तो मजबूरन यहाँ पर नैन लिखना पड़ा, क्योंकि ये नल नहीं था, तो जो यहाँ पर नल था वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके टेबल में आधी वैल्यूज़ नल हैं और आधी नहीं है और आप उनको फिर भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है, तो लगाना है हाउ इज इक्वल्स टू ऑल। हाउ इज इक्वल्स टू ऑल एट्रीब्यूट क्या करेगा, सारे के सारे नल वैल्यूज़ को हटा देगा, बची हुई सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। अब वही इन्होंने ड्रॉप एक्सिस 1 पे लगा दिया तो वो एक्सिस पे ड्रॉप कर देगा, एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 पे लगा दिया तो रोज पे ड्रॉप कर देगा। एक और तरीका बताया है फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़, तो मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फिल कर सकते हैं, तो ड्रॉप एन ए तो देख लिया जो वैल्यूज़ को ड्रॉप कर रहा था, सिमिलरली फिल एन ए भी होता है जो कि नल वैल्यूज़ को फिल करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है फिल एन ए और ब्रैकेट में आपने वैल्यू पास कर दी 0, तो जितनी भी आपकी एन ए वैल्यूज़ थी वहाँ पर 0 0 फेल हो गया। फिल एन ए इज इक्वल्स टू 0, तो ये देखो ये पूरा 0 था, ये 2 0 थे, बचा हुआ तो सारा डेटा था, तो वो आ चुका है। जो नल वैल्यूज़ थी उनको 0 से इन्होंने फिल करके यहाँ पर बता दिया। पूरी की पूरी डिक्शनरी में भी हम वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो फिल वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू एक फंक्शन बना लिया, फिल फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम ये हो गया की, और वैल्यू पेयर देना था तो वैल्यू दे दी एक्स, लास्ट नेम में वैल्यू दे दी एक्स, एज में वैल्यू दे दी 0, सेक्स में वैल्यू दे दी एक्स, वैल्यू बिफोर और वैल्यू आफ्टर में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी -999। जैसे ही आपने इस तरह से वैल्यू पास करी तो x x 0 x -999, और यहाँ पर भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट डालनी थी तो यहाँ पर -999, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम यहाँ पर पास करवा सकते हैं। एक और फिल एन ए इज इक्वल्स टू, फिल एन ए के साथ आपको कुछ और भी जो डिक्शनरी कॉलम्स हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हो। एज की वैल्यू 0 डाल दो, सेक्स किसी ने नहीं डाला है तो उसको x लिख दो। तो जैसे ही आप इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर जिसका भी ऐसा होगा एज 0 डाल देगा और सेक्स की वैल्यू x कर देगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने कर बताया है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल नंबर 44 देखते हैं। कंसीडर द डेटा फ्रेम DF MX MKS, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, एक डेटा फ्रेम है, इसमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फिल द मिसिंग वैल्यू विद वैल्यू 0। मिसिंग वैल्यू को 0 से फिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिल एन ए, और क्या डालना पड़ेगा, फिल एन ए फंक्शन में वैल्यू 0। जैसे ही आप फिल एन ए में 0 डालोगे तो आप देखोगे जितनी भी एन ए वैल्यूज़ थी वहाँ पर आपको अब 0 देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने हमको बताया है। अब किसी और डेटा फ्रेम से किसी और डेटा फ्रेम में वैल्यू नल से हटानी है तो दूसरे डेटा फ्रेम से वैल्यू हटाने के लिए यहाँ पर df1 डॉट फिल एन ए फंक्शन, और किस में से हटानी, df2 से। तो विल फिल मिसिंग वैल्यूज़ ऑफ डेटा फ्रेम 1 फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग डेटा फ्रेम 2। तो यहाँ पर आप अलग अलग डेटा फ्रेम्स में से भी वैल्यूज़ को मतलब कि नल वैल्यूज़ को हटा सकते हो। I think this is sufficient. Already it has been 10 minutes longer. So the topic number 2.8 we will be going through in the next class.
I want each one of you to go through this video clearly and properly and ask your doubts if you have any regarding the topic. So, alright, students, thank you so much. See you in the next class.